Since 2004, All India Shah Behram Bagh Society is an NGO in special consultative status with the United Nations ECOSOC. It has supported the work of the United Nations through various Millennium Goals, and now the 17 Sustainable Development Goals are already there. Dr. Davish Jain, Chancellor Prestige University, has supported the work of our NGO by providing IT technology and infrastructure through Professor Dr. Zubair Khan, which has enabled our NGO to contribute significantly to the work of the United Nations. Also, he and his team, including Dr. Anil Bajpai, Dr. Ashima Joshi, and others from Indore, have attended online conferences for sustainable development, especially in the area of food technology. A special thanks to all of them. In 2004 and again in 2008, our NGO president personally attended the conferences. Since 2014, Dr. Mrs. Anupama Jain has attended the annual conferences. After the COVID shutdown in 2020, these conferences have been held online. More people have been participating. Since 2021, we have availed of this facility by organizing parallel events through the NGO CSWNY to facilitate our representatives to be speakers at the United Nations. This year, we have had a lot of speakers speaking and the following persons have been speaking: Dr. Davish Jain, Dr. Meher Master Moose, Dr. Mrs. Lakshmi Shah, Dr. Narendra Kumrikar, Dr. Mrs. Nandita Shah, Mrs. Pooja Agarwal, Dr. Mrs. Veena Adige, Dr. Mrs. Usha Nair, and Dr. Karishma Kota, neurologist from England. She compared the program and introduced everyone. Dr. Zubair Khan of Professor Prestige University was the technical coordinator. This year, many of us either went there or spoke online. May I request Dr. Narendra Kumrikar, Center Head, Pune, India, who went there personally, to please come and share his views. Dr. Narendra Kumrikar. Good morning. Thank you so much. From the UN. Always useful, and I hope you've had the facility of going to the Photoshop to have your photos taken and put on a stand. You know, anyone of you? More than 1,000 photos. Oh, great. More than 1,000. You can have your photo put on a stamp and send it from the UN stamp office, post office, inside the UN building. Thank you for all this. So I'm so happy to see that so many people are now at the UN and actively connected with it. And please attend more conferences. There are so many conferences happening every year online. Whoever is interested, please let me know and pass the information on to you. And please register and attend. Because you don't have to even step out of your house to do that. You can attend all the online conferences and participate. Good morning and welcome all to the award convocation ceremony and 37th World Congress of Zoroastrian College on Medicine Alternativa and Science and Spirituality. For CSW 67, I have already given the report. So I will talk in two parts. First thing is report which I have sent through mail, and second my experience. So I will read out the report. With this report, we will aware what is CSW and how our college is associated. The Commission on the Status of Women, CSW, is a United Nations UN body dedicated to promoting gender equality and empowerment of women. It was established in 1946 and holds the annual conferences. The CSW 67 conference was held in 6th to 17th March 2023 for 12 days. Focus on
achieving gender equality and empowerment of women and girls throughout the globe. It's my pleasure to represent the UN CSW 67 of the All India Shah Behram Bagh Society. The CSW 67 delegation was made up of representatives from member of all the states, those who are even entities and NGOs like us. Each delegation was headed by the designated ambassador and all the representatives. Almost there are more than 500 entities are there. And each from each NGO or United Nations member, 6 to 8 delegations are there, was there. During the conference, several key issues was discussed and debated. First is digital education, online violence and harassment, digital skills and education, then data collection and analysis. The CSW 67 conference resulted in several points which are included: the adoption of new set of gender equality guidelines. They are set up, new guidelines are there. The establishment of new fund to support initiative aimed at promoting gender equality in this digital age. The fund will provide financial support to the government, NGO and organizations for those who are working on gender equality and women empowerment. The development of new partnerships and collaborations between government, NGOs and all the stakeholders, delegates are working on that. Those common area of interest and develop their initiatives. The CSW 67 UN conference delegation was an important event that brought together representatives from all around the world to discuss, address and share their thoughts. Through collaboration and dialogue, delegation was able to develop new strategies and solutions for advanced gender equality and ensuring that women and girls have equal access to the digital technologies and opportunities. This is the report which I have already given with some photographs. Now I will share my experience. I will share my experience in Hindi. 6 to 17 मार्च, ऑलमोस्ट 12 डेज, 12 दिन का ये प्रोग्राम था. और ये जो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, ये जोरासेन कॉलेज की वजह से मिली. ये तो मुझे मानना पड़ेगा, इसीलिए मैं पहले मैडम का धन्यवाद करता हूँ. और ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है. और अगर जोरासेन कॉलेज अगर नहीं है इसमें, तो ये अपॉर्चुनिटी का कुछ मीनिंग मेरे लिए नहीं है. 12 साल पहले जब 2010 में मैंने यहाँ पर एमफिल के लिए पहला प्रेजेंटेशन दिया था, फिर 2011 में पीएचडी के लिए, और उसके बाद ये 12 दिन का मुझे एक पैकेज, एक गिफ्ट मुझे मिला. और रियली ये इतना अच्छा गिफ्ट था, क्योंकि जनरल असेंबली में बैठ के सुनना ये कुछ लोगों का ही नसीब में होता है. एक तो जा भी नहीं सकते, विजिटर्स ओनली यू कैन विजिट सी फ्रॉम द क्लास. अंदर जाके आपको जनरल असेंबली में बैठ के, और वो भी एक स्पेशल स्टेटस, अपना नाम रहता है. जैसे यहाँ पर सीट नंबर वगैरह सब दिए हुए हैं, अपने अपने कॉलेज का वहाँ पर नाम है, सीट है, और वहाँ पर आप जाके बैठ सकते हो. तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम सभी को मिल सकती है. 3-4 साल से मैडम पहले गए थे और उन्होंने जो इनिशिएटिव करके स्टार्ट किया, और जो लेक्चर उन्होंने दिया था, पूरा रिपोर्ट दिया था, एक बुक भी उन्होंने लिखा है. तो उसी से इंस्पायर होते हुए मैडम से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं जाना चाहता हूँ, और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज मुझे दी. तो हम सब लोग ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, लेना चाहिए. अगर नहीं लोगे तो आप कुछ तो भी मिस करके जाओगे. यहाँ तक आए हैं और आप ऑलरेडी उसके लिए क्वालिफाई हो, तो ये अपॉर्चुनिटी हर एक ने लेनी चाहिए और जाके एक्सपीरियंस लेना चाहिए. एक्सपीरियंस में क्या होता है कि वहाँ पर 500-200 कंट्रीज और बाकी एनजीओस, बहुत अच्छे एनजीओस है जो अलग अलग विषयों ऊपर काम करते हैं. बहुत अच्छे विषय जो बोर्ड है और
एडवांस भी है और फ्यूचर वाले भी कुछ इश्यूज है। ऐसे कुछ इश्यूज मैंने वहाँ पर देखे हैं कि जो आज तो हम लोगों को पता नहीं रहता है कि ये प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद लगेगा कि अरे 5 साल के बाद आएगा। और डेफिनेटली जब मैं 25-26 में जब मैं कुछ न्यूज़ पढ़ूंगा तो ऐसे इशू आने वाले हैं। इस इश्यूज के ऊपर भी वहाँ पर चर्चा होगी। और खुशी इस बात की भी है कि जो चर्चा वहाँ पर चल रही है वुमेन एम्पावरमेंट की, गर्ल्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट की, जितनी सीरियसली वो चलती थी उतना सीरियस हमारे इंडिया में नहीं है। हम सब, हमारे पास यहाँ पर वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड है, गर्ल्स सेफ है, सुरक्षित है, और इसके लिए हमारे संस्कार संस्कृति है। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि ये जो लोग इतना पैसा खर्च करके इस विषय पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो रूट कॉज जो है उसको वो पकड़ नहीं पाए। तो उसके लिए नेक्स्ट ईयर जब भी जाएंगे तो हम जो पार्टिसिपेंट जाएंगे उन लोगों को गाइड करेंगे कि कैसे सब्जेक्ट हम करेंगे, चुनेंगे, और कैसे उनको ये जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या गर्ल्स के सेफ्टी के लिए जो कदम वो उठा रहे हैं उसमें और अच्छी तरह से सफलतापूर्वक पूरे जग को, पूरे लोग के सभी देशों के जनता वुमेन्स को वो बेनिफिट मिले। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट के ऊपर हम लेक्चर्स रख सकते हैं। एजुकेशन का सब्जेक्ट था तो एजुकेशनल जो एम्पावरमेंट होता है वो एजुकेशन से होता है। और हमारे यहाँ पर जो संस्कृति में सबसे पहले माता जो होती है, गुरु जो होती है वो माता ही होती है। माँ बाप से पहले हम लोग सीखते हैं, फिर टीचर के पास जाते हैं, फिर आगे एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं। तो और वो भी जो है वैदिक नॉलेज से, वैदिक साइंस से। तो जो हम वैदिक साइंस यहाँ पर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी जो हम दुनिया को बताते हैं कि स्पिरिचुअल साइंस का साइंटिफिक रिलेशन, उसके माध्यम से हम ये सब दुनिया को बता सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो एथिक्स बेस्ड जो एजुकेशन है वो सब आप ले लो और सारी दुनिया को, आपके समाज को, आपके फैमिली को, समाज को, देश को प्रॉस्परस करो। तो ये एक वहाँ पर एक्सपीरियंस देखा गया है कि लोग काम कर रहे हैं लेकिन बेसिक रूट कॉज उनको पता नहीं है, वहाँ तक उनको जाना पड़ेगा। दूसरा ये पता चला है कि वहाँ पर कौन से देश जो है अभी बैकवर्ड है और कहाँ पर सीरियसली काम करना पड़ता है। और वैसे फेज में से हम भी गए, जा चुके हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे पुरातन संस्कृति है। वो तो अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ लोग संस्कृति तो अभी 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है। तो वहाँ पर जो है और संस्कृति बदल भी जा रही है। बदलने के बाद जो बेसिक रूल्स जो है वो अगर फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पर ये ऐसी विपरीत परिस्थिति आने वाली है, आ ही सकती है। वो एक देखा गया है। और तीसरा एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि जो लोग आए थे वो सब कुछ ना कुछ लेने के लिए आए थे, चाहते थे कि हमें ये मिले। और जब हम अदर कंट्री के लोगों से जब बात करते थे उनका एक ही ये उद्देश्य रहता था कि आप कैसे रहते हैं, आपका कल्चर कैसा है, आप कैसे मैनेज करते हैं, ये प्रॉब्लम्स आपके पास है क्या। तो ये इस सभी विषयों पे जानकारी करने का, डिस्कशन करने का मौका मिला। और 12 दिन था और पूरे 12 दिन में पहले 12 नहीं, मैं तो 15 दिन वहाँ पर गया। सेकंड को मैं वहाँ पर गया था, थर्ड मार्च को मैंने एक पास कलेक्ट किया और रेगुलर मैं जाके सर्वे करता था, देखता था कि क्या क्या है। तो हर प्रकार से सर्वे करता था। देखने के बाद जो भी होता है, सवेरे 9 बजे इवेंट शुरू होता है, शाम को 5 बजे तक चलता था। तो पूरे 12 दिन मैं वहाँ पर रहा हूँ। डे वाइज मेरे पास रिपोर्ट्स है। 500 इवेंट्स थे, मोर देन 500 इवेंट्स थे, लेकिन मैं केवल 35 इवेंट्स अटेंड कर पाया। तो वो भी सिलेक्शन, जहाँ पर कभी कभी कुछ इवेंट्स में तो 1-2 जगह पे रश इतना था तो ऐसे पीछे खड़े रह के सुनना पड़ा। तो ये कुछ बातें हैं। तो अगर आप प्लान करके जाते हैं तो और अच्छी तरह से कर सकते हैं। वैसे इस साल पहली बार वीना मैडम ने बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवा लिया था, तो इसलिए सब पता चला है। फूड वगैरह के लिए या कौन से हॉल में जाना है, एक हॉल में दूसरा सेशन है तो डिस्टेंस भी बहुत है, तो भागदौड़ में आपका समय जाएगा। फिर फूड के लिए बेसिक कॉफ़ी शॉप वगैरह नीचे तो रहता ही है, लेकिन कुछ अपने पास कैरी करने के लिए कहा था, उसके लिए खाने पीने में टाइम नहीं गया। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टीम बहुत बड़ी नहीं थी। नेक्स्ट टाइम हम प्लान करके एक अच्छी तरह से पूरा फुल फोरम लेके जाएंगे।
और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। कोरम अगर डिवाइड करते हैं तो 35, अगर 6 लोग जाते हैं तो 200 लोग हो जाएंगे, 200 इवेंट्स हम अटेंड कर पाएंगे और बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा, डेटा कलेक्शन हो जाएगा। डेटा तो बहुत हुआ है और सब लोग इनवाइट भी करते हैं, हम भी सभी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो हमें एक अच्छा प्रोग्राम वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि जिससे जो यूएन के जो 17 गोल्स है उसके ऊपर काम करते हुए हम लोगों को वो गोल्स भी हम लोगों को अपने शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। तो इस प्रकार से काम करेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और सबके लिए अपॉर्चुनिटी बस एक ही कदम दूर है, आपको अप्लाई करना है और जाना है। इतना इजी यहाँ तक आप आ चुके हो और जाने के बाद आपको पता चलेगा कि पहले क्यों नहीं आए। और मैं तो आगे जितने भी बार जाने का चांस मिलेगा तो मैं जाना चाहूँगा और जो जाने वाले हैं उनको एक अच्छी तरह से गाइड भी करूँ। थैंक यू। Very good. अगर आपको कुछ पूछना है तो you can ask. Proud of you that you have taken the glory of Celestial College all the way to UN. Thank you for, and please remember, all who go are going at their own expense, and it's not a Yes, yes. cheap trip to make to the UN now. एक्सपेंस है लेकिन वर्थ है। यस।